Assalamu alaikum dears. In this video we will learn how to perform ductility test of bitumen, and code for performing this test is AASHTO T51 and ASTM D113. Performance objectives of this particular test, the ductility test of bitumen, are first performance objective is to assess the ductility of bitumen binder, that it is sufficient to avoid forming the cracks in the pavement or not. अगर ductility of the bitumen binder sufficient है, means greater than 100 cm है, इसकी लिमिट है 100 cm. अगर 100 cm ductility किसी भी bitumen sample की से ज़्यादा होगी, 100 cm प्लस होगी, तो it will form thin film around the aggregates. जब aggregate के साथ हम इसको bitumen को mix करेंगे तो वो that will form good thin film around the aggregates, and then it can be said that that has a sufficient the ductility. And after अगर उसी bitumen sample को aggregate के साथ mix करके आप asphalt mix बनाकर रोड पे आप ले करोगे, तो आफ्टर जब रोड को आप ट्रैफिक के लिए ओपन कर दोगे तो इट विल नॉट फॉर्म cracks in the pavement, it will not generate allow to generate cracks on the pavement. जितना भी लोडिंग कंडीशन हो उसके cracks उसमें जनरेट नहीं होंगे अगर bitumen की ductility sufficient है. सो इस चीज़ को हम चेक करेंगे आज. सेकंड हम चेक करेंगे bitumen that the identify the bituminous binder whether it will form thin film around the aggregates or not. अगर bituminous binder जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी है हमारे पास सैम्पल, उसकी sufficient ductility है तो it will definitely form thin film around the aggregates. So अगर 100 प्लस वैल्यू आ जाती है bitumen sample के ductility की, तो it means that is good bitumen and that is pos bitumen, and that will form good thin film around the aggregates, and it will also has sufficient ductility, and it will not allow to form cracks on the pavement. ठीक है. सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन में बैकग्राउंड में आपको कुछ दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा. देखें, डक्टिलिटी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं. डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, और व्हिच हैव एबिलिटी टू स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, दैट आर कॉल्ड एज द डक्टाइल मटेरियल. इसी चीज़ को हम बिट्यूमेन बाइंडर की इसी चीज़ प्रॉपर्टी को भी हम डिटरमाइन करेंगे इस टेस्ट में, डक्टिलिटी टेस्ट में. एंड सेकंड हम चेक करेंगे द एडिसिव प्रॉपर्टी ऑफ द बिट्यूमेन. इफ द बिट्यूमेन इज ductile enough, then it possess the good adhesive property, and also it will have a good ability to stretch. So ductile test, actually ductility test, gives us the adhesive property of the bitumen and its ability to stretch. In flexible pavement design, it is necessary that binder should form thin film around the aggregate. जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर thin film around the aggregate binder ने bitumen ने form कर लिए, तो it means it will have a good interlocking between the aggregate and the binder. बिट्यूमेन और एग्रीगेट ने अगर अच्छा मिक्सचर बना दिया तो इट विल हैव अ गुड इंटरलॉकिंग बिटवीन द एग्रीगेट्स एंड बिट्यूमेन एक्चुअली. सो अगर बिट्यूमेन में की डक्टिलिटी इनफ नहीं है, डक्टिलिटी इनसफिशिएंट है, तो इट विल गेट क्रैक्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड ट्रैफिक एटलेंस, एंड इट प्रोवाइड्स मींस रटिंग हो सकती है, फटीग हो सकती है. रटिंग तो नहीं होती इनसफिशिएंट डक्टिलिटी की वजह से, लेकिन फटीग क्रैकिंग आ जाती है. सो दैट इज़ अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन्स. डक्टिलिटी हम डिटरमाइन लिए करते हैं to check adhesive property of bitumen, to check its ability to stretch, to check that whether it will form thin film around the aggregates or not, and if the ductility is sufficient, then it will not allow the cracks to be appeared on the surface of the pavement. So ductility को define कैसे करते हैं? define एक्चुअली इस प्रोसीजर, इस पर्टिकुलर टेस्ट के बेसिस पे हम डक्टिलिटी या बिट्यूमेन को टेस्ट डिफाइन करेंगे. द डक्टिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू विच स्टैंडर्ड ब्रिकेट ऑफ अ मोल्ड ऑफ बिट्यूमेन कैन बी स्ट्रेच्ड बिफोर द थ्रेड ब्रेक्स. डक्टिलिटी का मतलब है कि भाई एक ब्रिकेट मोल्ड होता है, उसमें हम बिट्यूमेन को प्लेस करते हैं और फिर उसको एक साइड से उसको स्ट्रेच करते हैं. जैसे ही उसको एक साइड से स्ट्रेच करते हैं तो थ्रेड बनना शुरू हो जाते हैं, और वही थ्रेड जब ब्रेक होता है तो उस टाइम हम उस थ्रेड के डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करते हैं, एंड दैट लेंथ इज विल बी कॉल्ड एज द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल. वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है. डक्टिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स टू विच a standard broken mold of a bitumen can be stretched before the thread breaks.
थ्रेड जैसे ही ब्रेक हुआ वहाँ तक हम लेंथ मेजर करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन सैंपल. सो डक्टिलिटी टेस्ट कैन बी is conducted at a temperature of 27 ± degree centigrade and a rate of pull of 50 + 2.5 मिलीमीटर पर मिनट, या इसको 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से भी बोल सकते हैं. सो पुल जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं ब्रिकेट मोल्ड को, तो वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से हम पुल करते हैं. एंड द डक्टिलिटी वैल्यू एक्चुअली गेट्स अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स. ये जो भी पैरामीटर हैं इससे अफेक्ट होता है, जिसमें पोरिंग टेम्परेचर आ गया, डायमेंशंस ऑफ द ब्रिकेट मोल्ड आ गई, एंड इम्प्रॉपर लेवल ऑफ ब्रिकेट प्लेसमेंट, टेस्ट टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ पुलिंग ऑफ मशीन जो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर ऊपर नीचे हो गया तो दैट विल इफेक्ट एक्चुअली. इक्विपमेंट की तरफ आते हैं. इक्विपमेंट में हम पहले ब्रिकेट मोल्ड यूज़ करते हैं. ब्रिकेट मोल्ड है, ब्रिकेट मोल्ड इज़ दिस एक्चुअली, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ ब्रिकेट मोल्ड. क्या करते हैं हम इस ब्रिकेट मोल्ड को इस प्लेट पे रखते हैं, लेकिन प्लेट पे पहले हम ग्लिसरीन अप्लाई करते हैं. ग्लिसरीन अप्लाई करके फिर इस मोल्ड को हम इस प्लेट पे रखते हैं और उसके बाद स्क्रूज को टाइट करते हैं. स्क्रू को जैसे टाइट कर देंगे तो फिर इसका जो शेप है या पोजीशन है इस टाइप का हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने शो कर दिया है दिस पोजीशन, ये पोजीशन हो जाता है इसका. फिर इसमें हम बिटुमेन प्लेस करते हैं और उसके बाद फर्दर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रिकेट मोल्ड. ये जो आपको मोल्ड दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्रिकेट मोल्ड. आपसे कभी कभी वाइवाज में या इंटरव्यूज़ में पूछेंगे कि भाई द कंटेनर इन विच यू पोर द बिटुमेन फॉर डिटरमाइनिंग द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज़ कॉल्ड एज, या मोल्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज़ कॉल्ड एज. आप बताओगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि दैट इज़ दी ब्रिकेट मोल्ड. ठीक है, उसके बाद है वाटर बाथ. वाटर बाथ जो है आपको पता है कि वाटर बाथ क्या होता है. एंड इन इस पर्टिकुलर टेस्ट में वाटर बाथ डक्टिलिटी मशीन के एक्चुअली अंदर ही होता है. डक्टिलिटी मशीन है ना, ये पर्टिकुलर डक्टिलिटी मशीन है, इसके अंदर ही वाटर बाथ होता है, जो बिटुमेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. डिजिटल वाटर बाथ या ऑटोमेटिकली होता है. जैसे ही मशीन को हम ऑन करते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देता है. उसके बाद है डक्टिलिटी मशीन. डक्टिलिटी मशीन होल मशीन है, जैसे ये है, ये मशीन है एक्चुअली डक्टिलिटी मशीन. इसमें बहुत सारे सेटअप्स होते हैं. जैसे फर्स्ट वाटर बाथ होता है इसके अंदर. उसके बाद जैसे ये क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स में हम डक्टिलिटी जो मोल्ड है, ब्रिकेट मोल्ड है, इसको हम प्लेस करते हैं. फिर बटन होता है जिसको ऑन करते हैं. ऑन करने से ही क्या हो जाता है, डक्टिलिटी मशीन स्टार्ट हो जाती है. और उसके बाद ये इस एक साइड से यहाँ पर जो मोल्ड है वो बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है, दूसरे साइड से मूवेबल होता है. तो जैसे ही मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से मूवेबल जहाँ से वहाँ से इसको पुलिंग स्टार्ट करता है, और पुलिंग स्टार्ट करके एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पुल करता है. और जहाँ पर थ्रेड ब्रेक हो जाता है वहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड एज दी डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन. सो और एक थर्मामीटर यूज़ करते हैं जिसमें हम टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ मेजर करते हैं. ठीक है, ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं इसमें फॉर डिटरमाइनिंग द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन सैंपल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन सैंपल. प्रोसीजर में आपको वर्बली या ऐसे ही बता देता हूँ. इसी बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ लेना, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वी हीट द बिटुमेन सैंपल टू अ पोरिंग टेम्परेचर ऑफ 75 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड. बिटुमेन जो हमारे सेमी सॉलिड स्टेट में आता है उसको हम हीट करते हैं. हीट कर जब तक आप उसको हीटिंग कंडीशन में रख दो तब तक आप बिटुमेन जो ब्रिकेट मोल्ड है उसको आप सेट करते हो. ब्रिकेट मोल्ड को कैसे सेट करते हो, ये जो प्लेट है इसके ऊपर ग्लिसरीन लगाते हो, और ग्लिसरीन लगाने के बाद ये ब्रिकेट मोल्ड इस पे प्लेस करते हो, और उसके बाद स्क्रूज को टाइट कर देते हो. स्क्रूज को टाइट करने के बाद ये जो अपोजिट साइड वाले जो इसके पार्ट्स हैं ना, ब्रिकेट मोल्ड के अपोजिट साइड वाले पार्ट्स, इन पे भी आपको ग्लिसरीन लगाना है. इसके अंदर साइड से भी ग्लिसरीन लगा देना है, ताकि जब हम इसको रिमूव करते हैं, जब हम मोल्ड को डिटेच करते हैं, तो ये अपोजिट साइड्स वाले जो स्क्रूज हैं या अपोजिट साइड्स वाले साइड्स हैं इसको भी हम रिमूव कर देते हैं. फाइनल शेप ऐसे बच जाता है. यहाँ पर देखें तो साइड्स जो है ना वो रिमूव है. सो हम यहाँ पर ग्लिसरीन लगा देंगे. ग्लिसरीन लगाने के बाद फिर आप इसको यहाँ पर साइड में रखें और फिर बिटुमेन की तरफ आएँ. बिटुमेन जब हीट हो चुका हो तो उसको फिर IS नंबर 30 से उसको स्ट्रेन करें या उसको सी करें. सी करने के बाद सिंपली उस बिटुमेन
सैंपल को इस ब्रास प्लेट के अंदर या इस ब्रिकेट मोल्ड के अंदर आप बिट्यूमिन को पोर कर दें। देखें ये यहाँ पर जैसे इसको बिट्यूमिन को पोर कर रहा है। बिट्यूमिन को पोर करने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर में 30 मिनट्स के बाद 30 मिनट जैसे हो जाएंगे उसके बाद इसको वाटर बाथ में रखेंगे और वाटर बाथ का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर के बाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर बाथ में आधे घंटे के लिए छोड़ना है, दोबारा 30 मिनट्स के लिए या हाफ आवर के लिए छोड़ना है। हाफ आवर जैसे ही गुजर जाए उसके बाद दोबारा इसको इस ब्रिकेट मोल्ड को वाटर बाथ से निकालना है और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर बिट्यूमिन है उसको रिमूव करना है हॉट नाइफ से। जैसे यहाँ पर हॉट नाइफ से ये एक्स्ट्रा बिट्यूमिन को रिमूव कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बिट्यूमिन को रिमूव करने के बाद दोबारा हम इसको वाटर बाथ में प्लेस करेंगे फॉर 80 to 90 मिनट्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिप्लेस द मोल्ड असेंबली इन वाटर बाथ फॉर 80 to 90 मिनट्स। 80 to 90 मिनट्स हम इसको दोबारा ट्रिमिंग के बाद दोबारा हम इसको वाटर बाथ में रखेंगे एंड वी लीव इट फॉर 80 to 90 मिनट्स। और 80 to 90 मिनट्स के बाद हम फिर बाहर निकालेंगे इसको ब्रिकेट मोल्ड को और इसके साइड्स रिमूव कर देंगे। जैसे ये साइड्स हैं, ये साइड्स इसको रिमूव कर देंगे। साइड्स रिमूव करने के बाद हम ब्रिकेट मोल्ड को उठाकर डक्टिलिटी मशीन में प्लेस करेंगे। ये डक्टिलिटी मशीन है, ये डक्टिलिटी मशीन में हुक्स लगे होते हैं यहाँ पर। जैसे ये हुक है या 3 हुक्स यहाँ इस साइड में, 3 हुक्स इस साइड में, मीन्स 3 ब्रिकेट मोल्ड आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। सो हुक्स में हम ये ब्रिकेट मोल्ड के जो होल्स हैं ये हम प्लेस करते हैं और जितने भी आप सैंपल बनाओ, 1 सैंपल ब्रिकेट मोल्ड का बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ तो आपकी मर्ज़ी है। 2 बनाओ तो बेहतर है, वो एवरेज बन जाता है। सो उसको यहाँ पर हम प्लेस करने के बाद डक्टिलिटी मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं। डक्टिलिटी मशीन जैसे ही स्टार्ट होगा तो इट विल pull this particular briquette mold at a rate of 5 centimeter per minute। 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से जैसे ही पुल करता जाएगा तो यहाँ पर थ्रेड्स बनते जाएंगे। फिर आपको थ्रेड्स को देखना है, वो पर्टिकुलर मोमेंट जिस मोमेंट पे ये थ्रेड ब्रेक हो जाए उस मोमेंट पे आपको डिस्टेंस मेजर करना है। ये यहाँ से लेकर ये जो ब्रिकेट मोल्ड का एंड है वहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना है एंड जो भी वहाँ पर डिस्टेंस हो दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज दी डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल। अगर 100 सेंटीमीटर तक जो बिट्यूमिन है वो ब्रेक ना हो तो पहले आप टेस्ट स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज वी रिक्वायर दी डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन एज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गया मीन्स इनफ है। और टेस्ट वैल्यू में भी हम फिर रिकॉर्ड वैल्यू में भी 100 सेंटीमीटर ही रखते हैं। कहते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर प्लस हो गया, इट मीन्स दैट बिट्यूमिन हैज़ अ गुड डक्टिलिटी एंड इट विल फॉर्म थिन फिल्म अराउंड द एग्रीगेट्स। जो वहाँ पर हम टेस्ट स्टॉप कर देंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में ये चीज़ें आ जाएंगी। कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक बार इसको वर्बली दोबारा मैं आपको बता दूं क्या करते हैं। बिट्यूमिन को हीट करते हैं 75 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बिसाइड ही हम ब्रिकेट मोल्ड प्रिपेयर करते हैं जिसमें ये गिलास, ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर ग्लिसरीन लगाकर फिर ब्रिकेट मोल्ड को इसके ऊपर प्लेस करते हैं और उसके बाद जैसे ही ये प्रिपेयर हो गया उसके बाद हम बिट्यूमिन को स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करने के बाद बिट्यूमिन, ये ब्रिकेट मोल्ड है, इसमें हम बिट्यूमिन प्लेस कर देते हैं और इसको नॉर्मल टेम्परेचर के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स हम इसको वाटर बाथ में प्लेस करते हैं फॉर 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के बाद दोबारा इसको निकाल कर हम इसका जो एक्स्ट्रा बिट्यूमिन है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद दोबारा इसको बिट्यूमिन को उस वाटर बाथ में प्लेस करते हैं फॉर 80 to 90 मिनट। आफ्टर 80 to 90 मिनट्स we detach the extra sides of this briquette mold and then we place this briquette mold, we attach this briquette mold into the ductility machine। ductility machine में अटैच करने के बाद हम मशीन को रन कर देते हैं। it will start pulling that briquette mold at a rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसको पुलिंग स्टार्ट करता है और जहाँ पर थ्रेड ब्रेक हो वहाँ पर हम रीडिंग नोट करेंगे, डिस्टेंस नोट करेंगे एंड दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज दी डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल। उसके बाद हम कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं एंड दैट कैलकुलेशन इज़ दिस। बिट्यूमिन ग्रेड जो भी हो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं है आपको पता तो आप इसको सिंपली डैश कर दें। उसके बाद पॉइंटिंग टेम्परेचर लिखते हैं, फिर टेस्ट टेम्परेचर जितना भी था वो तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम कांस्टेंट रखते हैं। फिर पीरियड ऑफ कूलिंग इन मिनट्स हम रखते हैं। एयर में हम 30 मिनट्स के लिए, वाटर बाथ में 30 मिनट्स के लिए और वाटर बाथ आफ्टर ट्रिम करने के बाद, एक्स्ट्रा बिट्यूमिन ट्रिम करने के बाद 80 to 90 मिनट्स रखते हैं। फिर
जो भी डक्टिलिटी वैल्यू है ब्रिकेट नंबर 1 की 2 की 3 की वो यहाँ पर रखेंगे। 100 से प्लस आ गई तो 100 प्लस सिंपली यहाँ पर रख दो, और मीन वैल्यू जो भी है दैट इज़ 100 प्लस। और जिस भी बिट्यूमेन की 100 प्लस डक्टिलिटी वैल्यू आई तो उसको आप कहेंगे कि भाई इट इज़ इनफ डक्टाइल bitumen and it has good adhesive property and it can form thin film around the aggregates and it will that is a good quality bitumen, etc.